So today we are going to use or we are going to see the Z score. Okay. Why it is used? To find out the outliers. We use a Z score. Always remember that. So there are methods that we use to find out the outlier. First one is the box plot. Then we have a scatter plot. Or third one is the Z square or Z score or Z score. Okay, so these are the name. Okay, so first two method, that is for box plot or scatter plot. These are visualizations method, right? So when we visualize the data, we come to know that in a data set there is a outlier. So these are the visualization techniques, right? For example, if we draw the box plot over here, so this is the box plot, right? So this is the median. Okay, this one is the Q3, this is the Q1, this is the maxima, and this is the minimum. So this is a box plot. Means box plot में क्या होता है कि पहले वो मीडियन ड्रॉ करता है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, राइट? और इसमें हमारा डेटा पूरा स्प्रेड होता है, लाइक प्लॉट होता है. और जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, if our data points are out of this range, that means मिनिमम मैक्सिमम के बाहर जितने भी डेटा पॉइंट्स है, we consider those as the outliers, right? तो हमारा ये रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम, और ये हमारा ये दिस इज अ मीडियन, दिस इज अ Q3, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2, और ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, राइट? सो दीज आर द रेंज. इफ आवर डेटा पॉइंट्स आर आउटसाइड this range, for example these, so these data points which are outside our range, we consider it as a outliers. Okay, तो अभी हमें through when we use this visualizations technique ना, this is a box plot, right? So box plot से हमें visualization में हमें ये समझ में आता है कि there are some outliers in a data set, but properly how we can find out कि कौन सा observations ऑब्जर्वेशन आउटलायर है या नहीं, वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, फॉर दैट पर्पस वी यूज द Z score. Okay, so first we need to assume that data is normally distributed. Okay, so this is the basic assumption that data is normally distributed. Okay, तो normally distribution का हम एक बार ग्राफ देख देते हैं. So this is a bell shape graph. That means when suppose this is our x-axis, this is our y-axis, and these are the some values, right? Which we, and if we are plotting a data points over here, so they are following this bell curve, right? ऐसा एक bell curve structure यहाँ पे form हो रहा है. So this is mean that this diagram shows that our data is normally distributed. Okay. So अभी हम जब हम when we know that our data is normally distributed, there are some tests we use in statistics to prove that data is normally distributed. Right? ऐसे ही हम ऐसे डायग्राम देख के नहीं बोलते, but usually डायग्राम से हमें पता चल जाता है, but there are some specific tests that we use, that is Kolmogorov test is there. Okay, then there's another one test
that we use to find out कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं. ओके, सो बेसिक हम ऐसे एक डायग्राम की तरह हमें पता चल जाता है. इफ बेल शेप इज फॉर्म देन डेटा इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, तो अभी जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है दैट वी नीड टू स्टडी. Z score is equal to x minus mu divided by sigma. Okay, so what is this x? So x means our data points. Okay, data points. This mu is mean. हम x bar भी consider कर सकते हैं. X bar means sample mean, and this mu is considered as the population mean. Okay, and we have the sigma, that is variance or standard deviation. Okay, so when we know the mean, जब हमको मीन पता है, डेटा पॉइंट्स पता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पता है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट, फॉर एग्जांपल, सिग्मा इज एस स्क्वायर. दिस इज वेरिएंस. That sigma square is variance, and when we take the square root of sigma square, which is turned out to be sigma, तो ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो Z स्कोर का फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और Z इज इक्वल टू x i माइनस x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा. ओके, तो हमें Z स्क्वायर से व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट? बेसिकली Z स्कोर हमें क्या बताता है कि हमारा जो डेटा पॉइंट है, वो कितनी डेविएशन से अवे है, कितने डेविएशन से अवे है, अवे फ्रॉम मीन, राइट. तो उसको एक बार हम ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, तो हमारा ये डेटा है, सपोज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. आइडियल कंडीशन है, जेड स्कोर हम कभी भी यूज नहीं कर सकते. ओनली फॉर डेटा इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एट दैट पॉइंट वी यूज दिस जेड स्कोर. ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि सपोज दिस इज अ मीन, दिस इज अ मीन. ओके, तो अगर हम बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या होता है? देखो, दिस इज x plus 1 standard deviation, then x plus 2 standard deviation, x plus 3 standard deviation. This is x minus 1 standard deviation, x minus 2 standard, this is mean, and this is suppose x minus 3 standard deviation. तो थ्योरम क्या बोलता है कि योर 30%, 34% डेटा पॉइंट्स आर लाइज बिटवीन दीज स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 प्लस और 1 माइनस. ये जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है, इसमें हमारा कितने होता है? टोटल 68% ऑफ डेटा पॉइंट्स. हमारा जो डेटा है वो ये फर्स्ट इंटरवल में होता है, दैट इज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 प्लस और 1 माइनस. इसमें हमारा कितना होता है? 68% डेटा पॉइंट्स होता है. व्हेन वी कंसीडर दिस सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, व्हेन वी कंसीडर दिस सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें हमारा कितना होता है? 95% डेटा हमारा इस 95 डेटा इसमें लाई करता है. ये हमारी सेकेंड रेंज है, दैट इज मीन टू सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. और ये हमारा थर्ड रेंज है, जिसमें 99%
डेटा लाई करता है। दैट मीन्स ये थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसमें क्या होता है 99.9% डेटा हमारा होता है। और अगेन यहाँ पे जो ये जो दो है, यहाँ पे सारे आउटलायर्स होते हैं। ओके, आउटलायर्स। तो अभी z की वैल्यू कैसे होती है ये आपको अभी ये पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे z की वैल्यू होती है z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होता है z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी होता है z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सॉरी z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे होता है z इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे होता है z इज इक्वल टू माइनस 3। तो जब भी हम z स्कोर कैलकुलेट करेंगे, z स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर every value, when we calculate z score for each value, for each data points, तो वो वैल्यू क्या आ सकती है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z स्कोर? तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z स्क्वायर आर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। और अगर z स्कोर की वैल्यू इज ग्रेट लेस देन इज, इफ z स्कोर की वैल्यू ज्यादा आ रही है इस सेट से, दैट मीन्स वो क्या है? आउटलायर्स है, राइट? So if z square value is like 4 or something, that means this is the outlier. Okay, तो z स्कोर की वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए? +3 और -3 में जितने भी होंगे वो हम उसको आउटलायर कंसिडर नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, व्हेन वी कैलकुलेट द z स्कोर ना, तो देखो x बार म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ओके, सपोज मेरा एक डेटा पॉइंट है, सपोज मेरी x की वैल्यू है 1000, सपोज सॉरी मेरे x की वैल्यू है 700, so these are the marks। ओके, और मेरा पूरा 1000 का डेटा सेट है, और मेरा सपोज मीन है 500, सॉरी 500, एंड मेरा सिग्मा स्क्वायर है सपोज 100। ओके, तो मैं जब z स्क्वायर कैलकुलेट करती हूँ, z स्कोर, तो क्या आ जाता है फिर? 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज z स्कोर की वैल्यू सपोज 2 आ जाती है। ओके, और मान लो सपोज z स्कोर की वैल्यू आ जाती है 0.67। ओके, तो ये जो 0.67 है ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि में जो xi है, जो डेटा पॉइंट है, वो 0.6 डेविएशन दूर है मीन से। ओके, 0.6 डेविएशन दूर है मीन से, राइट? तो z स्कोर हमें सिर्फ z स्कोर ओनली गिव्स अस क्या वैल्यू देता है? z स्कोर की डेविएशन की वैल्यू देता है, जस्ट गिविंग अस हाउ मच स्टैंडर्ड डेविएशन अवे our data point is, our data point is। ओके, जस्ट हमें पता चल रहा है कि हमारा जो डेटा पॉइंट है वो 0.6 डेविएशन दूर है, राइट? बट नाउ वी वांट टू नो कि एक्चुअल कितने परसेंटेज ऑफ डेटा पॉइंट्स जो है अवे है। तो हम क्या करते हैं? z टेबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव टेबल होता है, तो आपको क्या करना है? तो इफ योर वैल्यू इज 0.67 ना, तो ये फर्स्ट 2 डिजिट आप z की वैल्यू कंसिडर करो, तो वो ऐसे रहता है कि z एंड 0.0, 0.1 ऐसे वैल्यूज रहते हैं, 0.7 एक्सेट्रा।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.0 से स्टार्ट होगा, जैसे सपोज यहाँ पे 0.6 है, तो आपको ये 0.6 की वैल्यू और ये 0.7 की वैल्यू, ये वैल्यू आपको कंसिडर करनी है. सपोज इट टर्न आउट टू बी 74.7484. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि 74% जितना डेटा है वो क्या है, उसको लेस देन 700 मार्क्स है. दैट मीन्स जो हमारा एक्स आई हमने कंसिडर किया है, हमने एक्स आई कंसिडर किया था 700, राइट. ये क्या थे, मार्क्स थे. तो दैट मीन्स कि there is a 74% student has less marks than 700. मतलब 74% स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 700 से कम है. सो दिस इज द परसेंटेज. सो ये हमेशा याद रखना कि Z स्कोर जो होता है, इट जस्ट गिविंग अस द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ मच अवे, राइट, कि 0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम हमारा डेटा सेट. बट अगर हमको व्हेन वी वांट अ परसेंटेज, फॉर दैट पर्पस वी नीड टू स्टडी द Z table. Okay, when we use Python and all, so these values are automatically comes. So don't worry about it. Just remember कि जो हमारा suppose first, तो just remember कि if you want to know percentage always go with the Z table. And if you want to know only the deviation, how much deviation your data is, for that use Z score. Okay. अभी और Z स्कोर स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा डेटा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो वो कितना होगा, 68% हमारा डेटा होगा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करेगा. दिस इज नोन एज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और फर्स्ट डेविएशन. सेकेंड जो भी है दैट इज प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें हमारा 95% डेटा लाई करेगा, दैट इज नोन एज सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन. और जो हमारा थर्ड है x प्लस 3 सिग्मा, x प्लस 3 सिग्मा और x माइनस 3 सिग्मा, उसमें हमारा 99% डेटा लाई करेगा. और अगर Z स्कोर की वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, मीन्स हमारा जो Z स्कोर है, सपोज ये है मीन, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. अगेन दिस इज x minus 1d, x minus 2d, x minus 3d. मीन्स जो भी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे होगे वो क्या, दीज आर दी आउटलायर्स. ओके, दीज आर दी आउटलायर्स. दैट मीन्स अगर Z की वैल्यू +3 से ज्यादा है, if it is greater than +3 or less than -3, then in this situation, if value of Z is अगर greater than होगी +3 से, then also the data points will consider as an outlier. And if value of Z is less than -3, then also the data points will be considered as the outlier. So this is very much important video. I hope that you have understood the meaning of Z score. So go through it. Please check the Z table. And always remember, we use this Z score to find out the outlier. So how we will do this in Python, we will see in the next class. But this Z score is very much important, and always remember that Z score is only giving us the value, and if you want to know the percentage, then we need to see the Z table.
Thank you for